Hello everyone. In this lecture, you will learn about the power of the lens in the combination. Okay, generally in some type of instruments, optical instrument, we can say like microscope, telescope, even the small. We have the optics instrument. Then we use some combination like eyepiece. Okay, eyepiece is also having the combination of lenses. So why we combine the lenses and how we combine the lenses? We generally combine the lenses in coaxial manner, that all the lenses keep in the same common axis, like the principal axis of the all the lenses will be same, plus the lenses may be kept at the physical contact or they can be kept at the some small distance. So in the both cases we will derive what will be the total power of the lens and what will be the total magnification. Like टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स आर ऑल्सो इन आर सिलेबस, तो वहाँ भी हम लेंसेज को कंबाइन करेंगे. एंड वेन एवर द लेंसेज आर प्लेस्ड को एक्सेली, जब भी हम लेंसेज को एक्सेली प्लेस्ड करते हैं तो what happen, the total magnification is the product of the magnification produced by the individual lenses. Like if we are having suppose three lenses which are placed coaxially, then the magnification of each lens is like m1 m2 m3, then the total magnification will be what, it is m1 into m2 into m3. So product of these magnifications will give you the total magnification. Clear? Why we combine the lenses? The reason may be to increase the magnification, कि हमें एक लेंस से जितना magnification मिल रहा है that is not sufficient, so we increase the number of lenses to increase the magnification. Similarly, sometime one lens gives the inverted real image, जैसा हमने formation of images में study किया था. तो in that situation if we want to erect the image, वापस उसको invert करना, inverted को invert करेंगे तो वो erect हो जाएगी. तो in that situation we again use the lens, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस. तो अगर हम टू लेंसेज यूज लेते हैं तो एक अगर इन्वर्ट कर रही है तो सेकंड लेंस वापस उसको इन्वर्ट करेगा, तो इन्वर्ट का इन्वर्ट इरेक्ट हो जाएगा. क्लियर? तो मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होगा और इमेज भी जो है वो इरेक्ट हो जाएगी. द थर्ड वन, जिस फील्ड ऑफ व्यू में हमें हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइक हम माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करते हैं या टेलीस्कोप में जब ऑब्जर्व करते हैं, तो जो फील्ड ऑफ व्यू होता है हमारे सामने, उस फील्ड ऑफ व्यू को भी इंक्रीज करने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को यूज लेते हैं. ओके, लाइक हम जो मोबाइल में भी कैमरा हम यूज लेते हैं, तो क्वाड कैम मोबाइल्स भी आ गए जिसमें 4 कैमराज होते हैं, 3 कैमरा के भी मोबाइल होते हैं. सो इन कैमराज का यूज क्या है, वो डेप्थ को भी सेंस करते हैं, प्लस उनका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है. वाइड एंगल पर जो इमेज होती है उसको हम वहां से कैप्चर कर सकते हैं. तो उसका जो यूज है वो फील्ड ऑफ व्यू को एक तरह से इंक्रीज करना है, कि स्मॉल डिस्टेंस पर अगर मुझे फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो लेंसेज को कंबाइन, बट दे आर नॉट को एक्चुअली अलग अलग जगह पे सिचुएटेड होते हैं. एग्जैक्ट मैं उसको रिलेट नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट रिमेंबर कि कॉम्बिनेशन का मीनिंग फील्ड ऑफ व्यू को इंक्रीज करना, इमेज को एनलार्ज करना, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना और इमेज को इरेक्ट करना. दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. तो हम यहाँ पर दो टाइप के कॉम्बिनेशन को डील करेंगे. द फर्स्ट वन, व्हेन द lenses are placed, the first one when the lenses are placed coaxially at a small distance d, and the second one when the lenses are placed coaxially without any separation between them, or back to back, or we can say with the contact, in contact when we place the lenses. So these are the two derivations जहां हमें टोटल पावर कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है, तो उसके हम डेरिवेशंस को यहाँ करेंगे. क्लियर? सो राइट डाउन द हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. The lenses are combined coaxially to increase total magnification
to increase total magnification, to erect the inverted image, to erect the inverted image, to increase the field of view, to increase the field of view, एक्सेट्रा। ठीक है, कई बार लेंसेज को हम जो नॉर्मल एरर्स जो होती हैं, जो लेंसेज के कारण प्रोड्यूस होती है, जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी रिड्यूस करने के लिए यूज लिया जा सकता है। सो एक्सेट्रा हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। सो these are the common uses of the combination of lenses. Clear? If M1, M2, M3 and so on Mn are the magnification by lenses L1, L2 and so on Ln, then the total magnification is the product of these individual values. These individual values, that is total magnification क्या होगा, m equals to m1 plus m2 and so on plus mn, sorry m1 m2 m3 and so on मल्टीप्लाई होते हैं। जो मैग्निफिकेशन है दैट इज जस्ट द सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स, और इसको हम देखो प्रोडक्ट जो होती है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई इक्वल्स टू 1 to n mi, जैसे हम समेशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट वी यूज द सिंबल पाई। तो यहाँ पाई का मीनिंग क्या होगा, m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn, इन सबका क्या है, प्रोडक्ट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन राइट द टोटल मैग्निफिकेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और ये कब है, जब उनको हमने कोएक्सियली प्लेस्ड किया है। Clear? When we placed them coaxially. So remember this expression as it is. Take the screenshot fast. So now in the next point we will find the power of the lenses placed coaxially at a small separation d. Clear? The power of lenses placed coaxially at a small separation, So in this topic, this is the first type of combination. तो combination of lenses में हमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम। मैं यहाँ इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो these are the two lenses. बाय डिफॉल्ट जो हम लेंस यूज लेते हैं they are convex lens, तो यहाँ भी हम इसको convex lens के लिए ही प्रूव करेंगे। So these are the two lenses and placed coaxially like this. Okay, the axis is common for both the lenses. This lens is L1, this lens is L2. Okay, diagram को ध्यान से समझना. This lens is L1, this lens is L2, and the focal length of this lens is f1 and focal length of second lens is f2. ये इसकी focal length है f1 and f2.
So if these are the focal length and let a light ray parallel to the principal axis is incident on the lens, first lens L1. एक लाइट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हमने फर्स्ट लेंस L1 पर इंसिडेंट किया है एट सम हाइट h1. ठीक है, लेट दिस हाइट इज h1, दिस हाइट इज h1. नाउ व्हाट विल हैपन इन एब्सेंस ऑफ दिस लेंस, अगर ये लेंस यहाँ पर नहीं हो तो इन एब्सेंस ऑफ दिस लेंस व्हाट विल हैपन, द लाइट रे विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ दिस लेंस. इस लेंस के फोकस पॉइंट से पास होगी. तो सपोज दैट दिस वन इज द फोकस पॉइंट फॉर दिस लेंस एंड इसको मैं f1 कह रहा हूं, फर्स्ट लेंस का फोकस पॉइंट है. एंड दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, दिस डिस्टेंस इज f1 फ्रॉम दिस पॉइंट O to, या O1 ले लेते हैं, O1 to F. O1 to F, the total distance will be what? It is f1. But since this lens is already present here, so again it will be refracted and let the final image formed here. Clear? Final image जो है इसकी वो यहाँ इस point पर बन रही है. Suppose it is the eye. And optic center of this lens is let O2. इस लेंस के ऑप्टिक सेंटर को मैं बोल रहा हूँ O2. और इन दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है that is small d. जैसे ये स्मॉल डिस्टेंस होगी बट हम इसको डिराइव करने के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं. सो दिस विल बी स्मॉल d, द सेपरेशन बिटवीन द बोथ लेंसेज. नाउ वी टॉक अबाउट द डेविएशन. जो लाइट रे का डेविएशन होगा यहाँ पर, उसको अगर हम डील करें तो व्हाट विल बी द डेविएशन बाय द फर्स्ट लेंस. देखो फर्स्ट लेंस के कारण जो डेविएशन है, लेट दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज Δ1. ठीक है, एंड जो सेकंड लेंस का डेविएशन है, ये डेविएशन कितना है, लेट दिस डेविएशन इज Δ2. डेविएशन का मीनिंग क्या हुआ, जो डायरेक्शन थी इंसिडेंट रे की उस लेंस पर, उससे वो कितना एंगल या कितने डिग्री डेविएट हो गई, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. सो दिस Δ1 इज फॉर द फर्स्ट लेंस एंगल ऑफ डेविएशन एंड द Δ2 इज फॉर द सेकंड लेंस. Now if I extend this, the second ray, ये इस मिडल पॉइंट है इसका, तो इसको अगर हम बैक साइड में एक्सटेंड करें तो ये इस तरह से यहाँ एक इमेज बनाएगी. दिस इज द सेकंड रे एंड दिस इज द मिडल पॉइंट ऑफ दिस लेंस एंड टोटल डेविएशन कितना होगा, दिस इज द टोटल डेविएशन डेल्टा. जहाँ टोटल डेविएशन डेल्टा को हम क्या लिखेंगे, Δ1 प्लस Δ2. फिर समझना, ये इंसिडेंट रे थी, फर्स्ट डेविएशन हुआ Δ1 और सेकंड डेविएशन हुआ Δ2. तो टोटल डेविएशन यानी फाइनल इमर्जेंट रे और इनिशियल इंसिडेंट रे, इन दोनों, ये इनिशियल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में देखो ये जो डेविएशन है, दिस इज द डेल्टा. ओके, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ चौक का. दिस वन इज द डेल्टा. क्लियर, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है यहाँ पर. दिस वन इज द Δ2 एंड दिस एंगल इज Δ1. सो टोटल जो डेविएशन होगा दोनों के ओवरऑल, वो क्या होगा, Δ1 प्लस Δ2. तो एक तो हमें ये टोटल डेविएशन यहाँ पर फाइंड करना है. नाउ वी सपोज दैट एक और चीज यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे दैट द हाइट ऑफ दिस लेंस, हाइट ऑफ द इंसिडेंट रे एट दिस लेंस इज व्हाट, इट इज h2. दिस हाइट इज h2. यहाँ पर हाइट हमने ली थी h1, यहाँ हम हाइट ले रहे हैं h2. सो इन दिस केस अगर हम इन दोनों की जगह एक लेंस बनाएं, जैसे हमने कॉम्बिनेशन जब भी हम करते हैं ना तो इक्विवेलेंट की बात करते हैं, लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हो, सेल्स हो, या हमने कैपेसिटर्स का भी किया था, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का भी किया था जब हमने इलेक्ट्रिक पावर की कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला फाइंड किए थे. सो उन सभी में हमने इक्विवेलेंट कंसिडर किया. तो यहाँ भी हम इस केस में एक इक्विवेलेंट लेंस कंसीडर करें, तो वो इक्विवेलेंट लेंस यहाँ पर हम रखें इसके मिडल पॉइंट पर. क्लियर, दिस इज द इक्विवेलेंट लेंस. और इसकी फोकल लेंथ अगर हम कहें कि स्मॉल f है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जो लाइट रे हमने हाइट h1 पर इंसिडेंट की, ये हाइट कितनी है, h1 है, क्योंकि हमें ओवरऑल हमारे पास जो रे है वो कहाँ पर आ रही है, h1 हाइट पर आ रही है.
तो जो इक्विवेलेंट होगा उस पर भी h1 पर ही जाएगी ना। अगर अगर हम कहें कि इन दोनों की जगह हमें एक लेंस बनाना है तो हाइट तो वही रहेगी ना जिस पर हमने दोनों के कॉम्बिनेशन पर इंसिडेंट किया और यहाँ पर हमने इसको इंसिडेंट किया, और दोनों के लिए टोटल डेविएशन भी सेम होना चाहिए फॉर दिस डायग्राम एंड फॉर दिस डायग्राम। फॉर सेम हाइट एंड फॉर सेम डेविएशन दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट ऑफ ईच अदर। यानी इन दोनों लेंस की जगह हम एक लेंस अगर लगाते हैं तो उससे भी हमें सेम हाइट पर सेम डेविएशन मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो हमें इनके कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। वैसे हम यहाँ इक्विवेलेंट लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक रिलेशन फाइंड करेंगे यहाँ पर जो DH1 D को रिलेट करेगा इनकी फोकल लेंथ से F1 F2 से। तो F1 F2 F और D में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है और F कैलकुलेट करेंगे और टोटल पावर कैलकुलेट करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन की टोटल पावर कितनी होगी। तो उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर अगर देखें तो इस सिचुएशन में I पर फाइनल इमेज बनेगी, दिस इज I जो दोनों से मिल रही है, ये दोनों से मिलके बन रही है, और जो एंगल होगा डेविएशन का वो कितना होगा, डेल्टा। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को हम यहाँ यूज लेंगे विच इज डेल्टा, एंड इफ दिस इज डेल्टा देन दिस इज आल्सो डेल्टा, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी f, क्योंकि ये इसकी फोकल लेंथ है। क्लियर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट, ये इसका एक्चुअल में फोकस पॉइंट भी होगा सिंगल लेंस का। यहाँ ध्यान देना, इस डायग्राम में F2 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, F1 को हमने कर दिया कि जो लाइट रे पैरेलल थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन F1 से पास हो रही थी, तो इस डिस्टेंस को हमने F1 कह दिया, O1 से F1 की। बट F2 हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते वो कौन सी डिस्टेंस है, क्योंकि सेकंड लेंस पर पैरेलल नहीं आ रही है, सेकंड लेंस पर जो लाइट रे आ रही है दैट इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, so that's why we cannot say that this distance will be L2 in this case. Clear? So this one is the diagram for our derivation. अब हम इसके कुछ steps यहाँ पर यूज लेते हैं, तो एक बार डायग्राम को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। Considering two lenses L1 and L2, considering two lenses L1 and L2 of focal length F1 and F2 respectively, placed coaxially at a small separation D, at a small separation D as shown. Okay, as shown in figure 1 कह सकते हो, let this is figure 1 here, as shown in figure 1. A light ray parallel to principal axis, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, this is the principal axis. Okay, this one is the principal axis. So parallel to principal axis, incident on L1, incident on L1 at height h1, the angle of deviation by L1 and L2 are delta 1 and delta 2. इनके जो एंगल ऑफ डेविएशंस हैं वो कितने हैं, L1 लेंस के लिए डेल्टा 1 है और L2 लेंस के लिए डेल्टा 2 है. ओके, सो देयर angle of deviations are what, L1 and L2 respectively. If L is their equivalent length, L is their equivalent length of focal length F, then the total deviation
by it will be equals to sum of डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. दैट इज अगर हम इसका जो टोटल डेविएशन डेल्टा का है तो वो इन दोनों के टोटल डेविएशन के इक्वल होना चाहिए. और सेम हाइट पर अगर हम लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, हाइट सेम डेविएशन सेम, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल हैव द सेम इक्विवेलेंट, यानी इसको हम इसका इक्विवेलेंट कह सकते हैं. जैसे हम रजिस्टर कॉम्बिनेशन में बोलते हैं ना कि वोल्टेज सेम हो और करंट सेम मिले तो इक्विवेलेंट कहलाता है, वैसे यहाँ पर हाइट सेम हो इंसिडेंट रे की और जो डेविएशन है वो सेम है दोनों का, तो उसको हम इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट कह सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास बनेगी डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. So fast take the screenshot. Now let this point is M. ये जो point है जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, and this point is N, and this point is suppose P. It is O and this one is F, जिसको हमने F already ले रखा है. So in triangle M F1 O dash, sorry O1 N F1 O1 या O1 M F1, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इफ दिस एंगल इज डेल्टा 1, तो देखो ये एंगल भी डेल्टा 1 होगा, Z बनेगा ना यहाँ पर एग्जैक्ट ये, तो अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए ये दोनों. सो द बोथ एंगल विल हैव द सेम वैल्यू डेल्टा 1. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड tan डेल्टा 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड बेस इज व्हाट, F1. ये बेस होगा ना यहाँ पर, O1 F1 इज द बेस एंड MO1, अगर आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो MO1 अपॉन O1 F1. तो MO1 हो गया H1 और O1 F1 हो गया F1. सिंपल. अब यहाँ भी अल्फा डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा स्मॉल होते हैं, एंड फॉर स्मॉल एंगल्स इनके एपर्चर्स कम होते हैं. एपर्चर कम होंगे की वैल्यू स्मॉल रहेगी. So for small aperture the delta 1, delta 2 and delta are small. So that's why we can write tan delta is nearly equals to, therefore tangent of that delta is nearly equals to delta. And we can write this equation delta 1 equals to H1 upon F1. This is equation number 2. Clear? So light ray incident parallel, then the delta 1 will be what? It is H1 upon F1. Now similarly we will write the expression for the second lens delta, और उसको भी हम assume करके देखो, जैसे हमारे पास ये रिलेशन मिला ना, वैसा ही हम इसके लिए भी रिलेशन लिख सकते हैं. H1 अपॉन F जो होगा that will be delta for this diagram, है ना. H1 अपॉन F will be delta, tan delta के इक्वल होगा ये, तो उसको भी हम यहाँ से लिख सकते हैं. सिमिलरली सेकेंड लेंस के लिए भी लिख सकते हैं हम कि H2 अपॉन F2, अब वो यहाँ शो नहीं होगा F2, बट हम उसको सिमिलर करके लिखेंगे H2 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2. तो एक बार मैं इस सेकेंड डायग्राम के लिए लिख लेता हूँ. इन ट्राइंगल OPF, फिगर 2 का है ये ट्राइंगल OPF, दिस इज फिगर 2. सो इन दिस ट्राइंगल वी कैन राइट दिस tan delta is nearly equals to delta and it will be H1 upon F. इक्वेशन नंबर 3, H1 upon F, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कितनी है कॉम्बिनेशन की, वो है F, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था F1 F2. Now similarly we can write, अब देखो हमने दो लेंसेज के लिए लिख लिया ना, तो similarly we can write for the third lens, और क्या लिखेंगे थर्ड लेंस के लिए, डेल्टा 2 is nearly equals to H2 upon F2. This is equation number 4. सिंपल. डेल्टा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये H1 अपॉन F1 है, ये H1 अपॉन F है, वैसे ये H2 अपॉन F2 होगा ना.
तो वो केस यहाँ नहीं बन रहा, फिर भी हम उस वो सेकेंड लेंस जो एंगल डेविएट करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, उसकी वैल्यू भी इसी तरह से मिल जाएगी. So now in this case we put the value 2, 3 and 4 in equation 1. Clear? So using 2, 3 and 4 in equation 1 we get 10. डेल्टा की वैल्यू क्या थी? h1 अपॉन f इज h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2. यही वैल्यू थी h1 अपॉन f equals to h1 upon f1 plus h2 upon f2, and let this is equation number 5. Now what will we do? We will find the value of h2 in terms of h1 from this diagram. दो ट्राइंगल लेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे, उनके साइड्स का रेशियो लेंगे, तो उससे हम यहाँ पर h2 को इन टर्म्स ऑफ h1 एंड d लिखेंगे, क्योंकि d अभी कहीं भी यूज नहीं है और हमें एक्चुअल में d की एक्सप्रेशन में या d की टर्म्स में हमें टोटल पावर चाहिए. तो h1 और d की टर्म में h2 को लिखना है, h1 कैंसिल होगा तो हमें इक्विवेलेंट की पावर मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड सेकेंड लेंस. तो उसको कैसे करेंगे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कंटिन्यू करते हैं. So now in triangle O1M F1 and O2N F1, अगर हम ट्राइंगल्स लेते हैं here, the triangle O1M F1 and the triangle O2N F1, these triangles are basically actually similar triangles. Why they are similar? Because देखो ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है. हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं? एक तो ये ले रहे हैं O1M F1 और दूसरा ये ले रहे हैं O2N F1, और ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है. क्यों है? क्योंकि ये एंगल कॉमन है यहाँ पर एक तो, दूसरा ये एंगल 90 है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा. और जब एक एक रेस्पेक्टिव एंगल्स हम चेक करें और वो इक्वल हो तो उनको हम सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं. सो इफ दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सो वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल. किसी भी दो साइड्स का रेशियो हम इक्वल ले सकते हैं. तो हम यहाँ कौन सी साइड लेंगे? हम लेंगे यहाँ O1M अपॉन O2N, और इस साइड को हम कौन सी साइड की इक्वेट करेंगे? जो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर है. जैसे हमने थिन लेंस फार्मूला की डेरिवेशन में यूज लिया था, वहाँ हमने लिखा था a डैश b डैश अपॉन ab. तो वैसे ही वहाँ भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके फिर हमने इन दोनों की हाइट्स ली थी, ऑब्जेक्ट और इमेज की, और वो साइड के इक्वल किया था जो प्रिंसिपल एक्सिस पर. सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. सो प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या है? यहाँ O1 F1, और सेकंड के लिए क्या है? इट इज O2 F1. तो ये तो हो गया हमारे पास में O1M कितना है? H1. O2N कितना है? H2. और यहाँ अगर देखें O1 F1, ये तो हमें डायरेक्ट पता है इट इज F1, बट O2F, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए तो वो कितनी होगी? देखो ये टोटल डिस्टेंस है F1, ये डिस्टेंस है D. तो अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो कितनी होगी? F1 माइनस D होगी ना. दिस टोटल डिस्टेंस इज F1, दिस डिस्टेंस इज D. So this distance will be what? F1 minus D. So if it is F1 minus D, then we put this value here, F1 minus D. यहाँ से फाइंड करो H2 और पुट कर दो इक्वेशन 5, तो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा. So just find out H2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं H2, इसको इधर ले आए, ये इधर आ गया, H1 F1 minus D upon F1. This is equation number 6. Now using 6 in equation 5, so we will get, when you put the value of 6 in equation number 5, then you will get this H1 upon F equals to H1 upon F1 plus H2 की वैल्यू हो जाएगी H1 F1 minus D upon F1, and F2 पहले से है यहाँ पर,
F1 तो यहाँ से आया इस इक्वेशन 6 से, और F1 यहाँ पर, F2 यहाँ पर पहले से था, सिंपल। अब देखो यहाँ H1 और H1 कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, इन दोनों टर्म में H1 को कॉमन ले लो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर इसको अगर रीराइट करें एक्सप्रेशन को, इसको मैं स्प्लिट करूंगा इन दोनों के साथ 1 बाय 1। तो इक्वेशन 5 हमने पहले स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस f1 अपॉन f1 f2, f1 कैंसिल होगा 1 अपॉन f2, f1 अपॉन f1 f2 जब स्प्लिट करोगे तो f1 विल कैंसिल आउट एंड इट विल बी 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2 माइनस d upon f1 f2, and this is the formula for the equivalent focal length. ये equivalent focal length f का एक एक्सप्रेशन है। अब पावर जो होती है वो focal length का रेसिप्रोकल होती है, पावर इज द 1 upon f, so in terms of power we can write p is equals to p1 plus p2 minus d times of p1 p2। क्लियर? तो पावर जो होगी इस सिस्टम की या इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वो इस तरह से दी जाएगी। तो यू जस्ट रिमेंबर वन ऑफ दीज टू फॉर्मूलाए, आइदर दिस वन और दिस वन, क्लियर? एंड देन you can find the second formula regarding the same. So take the screenshot fast. अब देखो यहाँ पर अगर हम d को 0 कर दें, इसी डेरिवेशन से आप वो भी कर सकते हो कि अगर ये सेपरेशन इनको हमने कांटेक्ट में रख दिया, इफ दे आर इन कांटेक्ट देन व्हाट विल हैपन, दिस b विल बिकम 0 एंड इफ d is 0 then this third term will become 0 and if this third term is 0 then b is simple p1 plus p2 या f1 upon f is 1 upon f1 plus 1 upon f2, this term will become 0. So we can directly find that formula when the lenses are placed in contact, okay, and coaxially using the same formula, this one. Yeah. So now take the screenshot.